अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है संतोष सक्सेना ने और वीडियो का टाइटल है मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई फ्रैंक एंड जेन ट्रेवल इंडिया। एंड आई एम श्योर कि अब जो लोग साउथ में रहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं साउथ में, वो काफी ज्यादा खुश होंगे कि हम साउथ की मूवीज मूवीज हम देखते रहते हैं। एनीवे देख लेते हैं पहले मीनाक्षी टेम्पल, क्योंकि हम लोग कल भी हम लोगों ने वाटर डांस देखा था स्वामी नारायण ने जो अक्षरधाम का। और वैसे पता है एक करेक्शन की थी, हम लोग उसमें बोल रहे थे वो टेम्पल था और हम लोग बोलते जा रहे थे आश्रम। दैट इज नॉट आश्रम। ओके वेल, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। After another night train ride from Chennai, we arrived in the city of Madurai at 3 a.m. Normally, it's not hard to find a hostel anywhere in India, but it's close to the New Year, and some kind of religious festival is happening in Madurai. We walked for hours in the dark before finding a room in the dirtiest hostel we've ever seen. Nevertheless, with only one day in Madurai, we find ourselves at the entrance to the magnificent temple in the center of the city. दो है ना मेरे सामने। Two-day train journey, and we are finally at our destination in Madurai. This is the reason we came here. Very different kind of temple, Hindu temple, the South Indian style. We're actually in the province of Tamil Nadu. The people here don't speak Hindi anymore; they speak Tamil, and they've got some different stuff from the rest of India. साउथ इंडिया में है ना। Reaching up to 50 meters high and sprawling for 45 acres, the Meenakshi Temple complex can be seen from anywhere in the city and is a brilliant example of a South Indian Hindu temple. The city of Madurai goes back 2,500 years, and the Meenakshi Temple was mentioned as early as the 7th century. After being sacked by Muslim invaders in 1310, the current structures were constructed between the 13th and 17th century. Compared to North Indian landmarks, most of which don't serve any practical purpose anymore, the Meenakshi Temple is actively used and maintained. All 33,000 of its carvings are regularly repainted to keep their vibrant colors. काफी ज़्यादा मूर्तियाँ डिफरेंट कलर रीपेंट करते रहते हैं। वाओ।
The inside of the temple complex is beautifully painted with an abundance of color. And being a temple devoted to the goddess Meenakshi, the consort of Shiva, statues of both are everywhere. There are lots of tourists, but most of the 15,000 daily visitors are pilgrims carrying out their worship. Despite the crowd, the cool air inside makes this a pleasant experience. A ceremonial elephant keeps a steady stream of locals occupied. You can pay for a brief ride or have your head touched by the elephant's trunk. हाथी को कितना प्यारा With किया so हुआ many ना customers, the handler doesn't even pay attention to the tourists, except ओ उसे गले में भी देखो नॉट ओके It is not loaded here. यू आर टेकिंग फोटोज मतलब लोग इधर से होते हैं जगह The elephant's giving them a blessing. Got a lot of junk in his trunk. near the exit, there are the usual strategically placed souvenir shops. Since only Hindus are allowed in the inner sanctum, here is where tourists are often found. ये पिक्चर लग There रही है are 14 towers, large and small, within the complex, and with each carrying thousands of Koreans, it is entirely possible to spend a whole day here. क्या चिड़िया कबूतर है कबूतर लग रहे हैं कबूतर है For us, a poorly planned itinerary means that we have only a couple of hours, just barely enough time to appreciate the true size of these enormous structures, but not enough time to cover the entire temple grounds. After some hasty photos and videos, it's time to go find a bus for tonight that will take us out of Tamil Nadu and into the neighboring state of Kerala. ये साउंड ना बचपन की याद आ रहा है बहुत यूनिक As है night falls and we prepare to catch the bus, we take one last look at Meenakshi Temple from a दूर से नहीं distance. लगता कि वे Even इतने ज़्यादा after colours having हुए been हैं। there, the towers still don't look real.
We will have to leave these alien-looking structures now. It's going to be New Year's Eve tomorrow, and we have a long bus ride tonight. ये लेकिन पास में एक ही एरिया होगा या दूर दूर? एक अगर मैं टेंपल की खूबसूरती की बात करूं तो टेंपल जो है बहुत खूबसूरत है। जब दूर से उसे एक दफा देखे ना तो कोई कलर वगैरह उस पर इतना फील नहीं हो रहा था वीडियो में, रियल में तो फील हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसके शॉट्स क्लोज करते गए तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस पर जो कलर्स थे ना, जो जितने भी उस पर मूर्तियां जितनी भी बनी हुई थी उन पे कलर्स बहुत अच्छे किए हुए थे। बिल्कुल बहुत अच्छे कलर से। अच्छा पता है दूर से जब देखा था ना तो मुझे सिर्फ 2 कलर्स नजर आ रहे थे, एक फिरोजी और एक गोल्ड। ये 2 कलर्स जैसे मुझे नजर आ रहे थे, बाकी मुझे इतना ज्यादा कलरफुल नहीं नजर आया जितना कि मतलब पास जाकर नजर मेरी दूर की नजर कमजोर है। नहीं मतलब शॉर्ट जो लिया था मुझे उसमें ये चीजें नजर आ रही थी। और उसके अलावा हाँ मैं ये बात बोलना चाहूंगी, वाकई में जब हम साउथ की मूवीज देखते हैं तो वहां पर जो टेम्पल्स मूवीज में होते हैं वो वाकई में इसी तरह का आर्किटेक्चर होता है। मतलब इतनी सारी मूर्तियां होती हैं या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि ऐसे मतलब ऊपर हाइट में बहुत ज्यादा होता है। वैसे अगर टेंपल को देखा जाए ना तो जितनी उसकी हाइट है ना तो देख के ना एक बार बंदा जो है वो वाकई हैरान हो जाता है कि उस वक्त में, यानी कि आज से जितने 1000 साल या जितने 100 साल पहले ये बनाया गया था तो उस समय में कैसे लोगों ने इसे बनाएगा, कितनी मेहनत की होगी, एक एक छोटे छोटे उसके पॉइंट्स देखना उसे, और फिर इतनी हाइट पर उसे लेकर जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है। मैंने ये चीज देखी कि हम लोगों ने जितने भी टेम्पल्स देख लो या पुरानी तारीखी इमारतें देख लो, आपको हमेशा ये चीज नजर आएगी। आज का टाइम तो मशीन का टाइम है ना कि मशीन से डिजाइन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस टाइम पर लोग हाथों से जो करते थे वो खूबसूरती मशीन से नहीं आती। वो अभी भी हाँ वही ना, अभी भी जो लोग हाथ से काम करते हैं ना वो खूबसूरती का लेवल अलग है, और जो काम मशीन से होता है ना वो लेवल अलग है। बेशक वो कढ़ाई हो, वही मैं बात कि अगर हम फर्नीचर की बात करें ना, हमारे दादा नाना के जमाने की अगर कोई एक पुरानी, मुझे अच्छे से याद है मेरी नानी अम्मा का एक पलंग है बहुत बड़ा सा, और बाकी में वो इतना मजबूत है और इतना पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब जो उसकी खूबसूरती है वो आपको आज के टाइम में नहीं नजर आती। अच्छा वाकई एक तो खूबसूरती भी नजर नहीं आती और जो उन चीजों में मजबूती है वो भी वाकई नजर नहीं आती। जैसे वो चीजें क्लासी लगती हैं, इसमें नो डाउट वो क्लासी लगती हैं, खासतौर पर एंटीक्स अगर हम देखें तो वो कितने क्लासी लगते हैं। लेकिन अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं अगर उन्हें देखा जाए तो वो बनी होती हैं, वो पतली पतली टाइल्स होती हैं ना उनसे ज्यादातर बनी होती हैं और मट्टी चूने से बनी होती हैं, और अभी तक वो इतनी अच्छी कंडीशन में है। और जो उसके बाद यानी कि अगर आज की बिल्डिंग्स की बात करें तो वो तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि अल्फाज ही नहीं ना है। मतलब आज की बिल्डिंग्स मॉडर्न जरूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जितनी भी, मैं कहती हूँ उन्होंने कितनी सदियां देखी होती हैं। बिल्कुल उनकी एक वैल्यू अलग है, डिफरेंट लोगों को देखा होता है। देखें इसकी मिसाल ये है कि अगर आज के वक्त में हम कोई विशाल मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग देखते हैं तो हम लोगों को ना वो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब हम कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई पुराना मंदिर या कोई पुराना किला या कोई पुरानी हवेली देखते हैं, पुरानी मस्जिद यानी कोई भी चर्च देखते हैं, यानी कि आज से कोई 500-600 साल पुरानी चीजें हम देखते हैं तो देख के ना वाकई एक दिल और दिमाग आपका जो है ना वो किसी और ही टाइम में चला जाता है कि यार उन लोगों ने कैसे ये चीजें बना ली होंगी। और अभी हम बात करते हैं थोड़े से फैक्ट्स की जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं इस टेंपल के बारे में। और सबसे पहले मैं बताऊंगा जो ये एक मंदिर जो है मदुराई में मीनाक्षी मंदिर, ये एक हिस्टोरिकल मंदिर है जो कि उसे देख के भी पता चल रहा था। और अगर इसकी बात करें तो ये विगाई रिवर जो कि मदुराई में है उसके साउथर्न बैंक पर स्थित है। ये टेंपल डेडिकेट किया गया है मीनाक्षी जो कि फॉर्म ऑफ पार्वती है, और उनके साथ ही सुंदरेश्वर को जो कि फॉर्म ऑफ शिवा हैं। अगर यहाँ पे पार्वती जी की बात की जाए तो पार्वती जो है वो एक गॉडेस हैं जो कि फर्टिलिटी, लव, ब्यूटी, मैरिज, चिल्ड्रन, डिवोशन एज वेल एज स्ट्रेंथ और पावर की भी गॉडेस समझी जाती हैं। और मीनाक्षी टेंपल लोकेटेड है मदुराई सिटी के सेंटर में, यानी कि इसे दिल भी कहा जा सकता है कि उसके दिल में ये जो है टेंपल लोकेटेड है। अगर बात की जाए इसकी तो ये जो है 460 किलोमीटर जो है चेन्नई से साउथ वेस्ट
वेस्ट पर स्थित है, और चेन्नई तो सबको मालूम है कि तमिलनाडु का जो है कैपिटल सिटी है। एंड दिस टेम्पल इज वेल कनेक्टेड विद रोड नेटवर्क, और उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन, सॉरी रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है, और एयरपोर्ट की भी सुविधाएं जो थी वो डेली बेसिस पे। अगर बात की जाए तो इसे जो है जो अलाउद्दीन खिलजी था और उसके साथ जो उनके एक साथी थे कफूर, उन्होंने जो है इसे इन्वेड किया था, और उसके बाद जो है नायक डेस्टिनी जो थे, उनके जो रूलर थे विश्वनाथ नायक, उन्होंने 16वां और 17वीं सदी के बीच जो है इसे दोबारा से रीबिल्ड किया था। और मीनाक्षी टेम्पल के अंदर 2 सेपरेट श्राइन्स हैं, जिनमें से एक गॉडेस मीनाक्षी जी का है और एक गॉडेस सुंदरेश्वर जी का है। और तमिल कैलेंडर के जो मंथ्स हैं उसमें जो है यानी कि ईच मंथ में जो है इसका जो है यहाँ पे एक होली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। एंड ओवर द सेंचुरीज इस टेम्पल को एजुकेशन ऑफ कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड डांस का मरकज माना जाता है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है ये टेम्पल हमें बहुत खूबसूरत लगा। उसके इंटीरियर की बात करें, उसके एक्सटीरियर की बात करें, बहुत खूबसूरत था। अगर इंटीरियर पे जो है कलर्स जिस तरह किए हुए थे वो बहुत अच्छे थे, और वो बता भी रहे थे बीच में कि टाइम टू टाइम इन पे जो है पेंट दोबारा किया जाता है। उसके बाद अगर हाथी की भी बात करें तो जिस तरह हाथी खुश इखलाकी से लोगों से मिल रहा था, और मुझे वो भी आशीर्वाद दे रहा था। मुझे वो चीज भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वैसे ना एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखो ये टेम्पल्स इतने साल पहले बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन देखो शहर बन गया हुआ, पूरा आबाद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पूरे शहर में नजर आ रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने बीच में जिक्र भी किया कि आप पूरे शहर में से कहीं से भी देख सकते हैं इसको। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पुराने टाइम के लोगों की ना नीयतें बड़ी अच्छी होती थी, वो अपनी नीयत से काम किया करते थे। और हम लोग जैसे जैसे वीडियोस देखते जा रहे हैं डिफरेंट टेम्पल्स की, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है देखना, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को वीडियोस देखने का पर्पस ये होता है कि हम लोग डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करें, बिल्कुल, उनके बारे में हमें नॉलेज मिले। बिल्कुल। और सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कल जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी और उससे पहले भी उसी का एक पार्ट देखा था, वो बिल्कुल एक नॉर्थ साइड की वीडियो हमने देखी थी, और अभी हम देख रहे हैं एक साउथ साइड की वीडियो। हाँ, इंटरेस्टिंग ये फैक्ट हो गया कि हम लोगों ने एक नॉर्थ और एक साउथ दोनों कल्चर को देखा है, और हम लोगों को सच में दोनों को देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। और यू नो हमारे लिए तो इसलिए कनेक्टिविटी है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्थ की मूवीज भी देखते हैं और हम लोग साउथ की मूवीज भी देखते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज को अपने साथ कर सकते हैं। एनीवे, ओवरऑल हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ हम वीडियोस करें, लाइक, हमारे चैनल वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन